Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss closing entries. Before that we had discussed adjusting entries and we had work on adjustments. After that we moved on towards 6 column worksheet and 10 column worksheet, in which I have explained you that in 6 column worksheet you have to just focus on trial balance, adjustments and adjusted trial balance. These were the 3 major columns, and in case of 10 columns worksheet there were 5 major columns that included trial balance, adjustments, adjusted trial balance, income statement and balance sheet. These were 5 major columns in 10 column worksheet, and I tried my best to explain you 6 column worksheet as well as 10 column worksheet in easy terminology, in easy words. Today we are going to proceed the same topic, that is about closing entries. Whenever we make worksheet, after that we have to pass closing entries as well. We have to prepare closing entries as well, because at the year end we have to close the books of accounts. We have to close different accounts that were maintained with us throughout the year. We have to close all those accounts so that we can take a new start from the new year, and we may get mentally prepared about what was our total income and what was the value of our total assets and total liabilities and owner equity and all that. So we have idea about that, and then we move towards the next year, and then we open books of accounts, and then we proceed throughout the year. So the basic purpose of closing entries is that as you can see on the screen, that at the end of financial year the books of accounts are closed. We all know that कि जैसे ही ईयर एंड आता है हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज़ करना होता है, ताकि हमें थ्रू आउट द ईयर अपनी परफॉर्मेंस पता चल सके, हमें ये पता चल सके दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग, और हमने थ्रू आउट द ईयर क्या काम किया है, क्या एक्टिविटीज़ की हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं. सो फॉर दैट रीज़न, फॉर दैट पर्पज़ वी यूजुअली पास क्लोजिंग एंट्रीज एज वेल. वी हैव टू क्लोज डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईयर एंड पे, क्योंकि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए हमने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी होती हैं, बिकॉज दीज क्लोजिंग एंट्रीज आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. सो what does closing entries means? This means that balances in nominal accounts वो temporary accounts होते हैं, specifically जो कि income statement accounts होते हैं, इनको हमने ज़रूर close करना होता है year end पे. और जब हम इन accounts को close करेंगे, so it means कि जो इन accounts में balance होगा उसको हमने transfer करना होगा expense and revenue summary account. expense and revenue summary account, it means profit and loss account की भी बात कर रहे हैं. ये expense and revenue summary account is basically a temporary अकाउंट जो कि हम टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए जनरेट करते हैं, ताकि जितने भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनका जो बैलेंस है वो हम टेम्प्रेरी बेसिस पे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें. और जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो हमारे पास एक फ़ाइनल फिगर होती है, एक वैल्यू होती है, और हमारे पास जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नील हो चुके होते हैं, क्योंकि ईयर एंड पे हमने क्लोजिंग एंट्रीज पास कर ली होती हैं, हमने जो बैलेंसेस होते हैं वो ट्रांसफ़र कर लिए होते हैं नॉमिनल अकाउंट से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में. सो इस रीज़न को माइंड में रखते हुए हमने कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं दैट आर रिलेटेड विद closing entries. So basically there are 5 categorizations, or we can say that there are 5 classifications of closing entries. The first classification या जो first आपके पास category है, that is to close all the expense account. expense account is basically income statement account, या जैसे हम कहते हैं it's a temporary account, या जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि it's a nominal account. तो हमने जितने भी हमारे पास expense accounts हैं income statement में, जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंस अकाउंट्स थे, उन तमाम अकाउंट्स को हमने क्लोज़ करना होगा. अब क्लोज़ करने के लिए आपने एंट्री कैसे पास करनी है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट वुड बी डेबिट एंड एक्सपेंस अकाउंट वुड बी क्रेडिट. एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट टू एक्सपेंस अकाउंट. अब आपने एक्सपेंस अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करना है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में. सो दैट्स वाई हमने ये जर्नल एंट्री पास की है. जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं एक्सपेंस अकाउंट से एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में, तो एक्सपेंस अकाउंट को आपने क्रेडिट करना होगा, बिकॉज डिक्रीज़ इन एक्सपेंसेस वुड अकर. जितने भी टोटल अमाउंट होगी एक्सपेंसेस की, वो अमाउंट आपने यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे मेंशन करनी होगी. उस टोटल अमाउंट
को आप मेंशन करेंगे, जितनी भी टोटल अमाउंट है एक्सपेंस अकाउंट की वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, विच शोज़ दैट आपका ये जितने भी एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस था वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को। दैट्स वाई इस अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया और एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर लिया, बिकॉज आपका जो एक्सपेंस अकाउंट है वो डिक्रीज इन बैलेंस शो करेगा, नील शो होगी उसमें अमाउंट। सो दैट्स वाई एक्सपेंस अकाउंट इज़ क्रेडिटेड हेयर इन दिस केस। ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी क्लोजिंग एंट्री की। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ टू क्लोज ऑल दी इनकम अकाउंट्स। अब जितनी भी हमारे पास इनकम अकाउंट्स हैं दैट आर बेसिकली इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, जो इनकम अकाउंट्स हैं ये भी नॉमिनल अकाउंट है, और हमने जितने भी हमारे इनकम अकाउंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट में उनको भी क्लोज़ करना है। तो जब आप इनकम अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो इसका ये मतलब है कि इनकम अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो आपने इनकम अकाउंट से उठा के ट्रांसफ़र करना है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। तो here in this case income account would be debited and expense and revenue summary account would be credited, mean to say कि आपकी जो income account है उसमें decrease आएगा क्योंकि सारा balance transfer हो रहा है expense and revenue summary account में। तो that's why यहाँ पे हमने income account को debit किया है because balance is transferred from income account to expense and revenue summary account। इनकम अकाउंट में डिक्रीज शो होता है डेबिट से, और यहाँ पे हमने अमाउंट्स मेंशन करनी है डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे रिस्पेक्टिवली। देन द थर्ड कैटेगरी इज़ ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम टू कैपिटल अकाउंट। अब जो नेट इनकम थी आपकी इनकम स्टेटमेंट में वो आपने ट्रांसफ़र करनी है कैपिटल अकाउंट को, जो कि है आपका एक तरह से बैलेंस शीट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली हमारे पास बैलेंस शीट अकाउंट है या परमानेंट अकाउंट हम इसे कहते हैं। अब इस रिलेटेड आपने क्या एंट्री पास करनी है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मींस जब आप नेट इनकम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नेट इनकम से बैलेंस उठा के आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इंक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट इज़ यूजुअली मैंशनड एज इज़ यूजुअली शोन ऑन दी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम कैपिटल अकाउंट को शो करेंगे बिकॉज हम नेट इनकम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज़ आएगा, एंड इंक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट इज़ denoted by credit side. Then the fourth categorization is transfer of net loss to capital account। जब लॉस की बात आती है, जितना भी लॉस है आपने उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो एज यू कैन सी कॉमन सेंस सेज कि लॉस की वजह से आपके कैपिटल अकाउंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, लॉस की वजह से आपके कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज़ आएगा। सो दैट्स वाई as you can see the transaction capital account debit to expense and revenue summary account credit। कैपिटल अकाउंट में आपके डिक्रीज़ आ रहा है लॉस की वजह से, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है। द लास्ट कैटेगराइजेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ड्राइंग्स टू कैपिटल। ड्राइंग्स हुई हैं कैपिटल अकाउंट में से। ड्राइंग्स आप जानते हैं कि ड्राइंग्स एक तरह से बिज़नेस से पैसा जा रहा है, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉल्स कर रहा है, कुछ पैसा निकाल रहा है बिज़नेस से, सो वो हमारे पास बेसिकली ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट होता है। और जब ड्राइंग्स में इंक्रीज़ आती हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, बट यहाँ यू कैन सी दैट कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग्स एक तरह से एक्सपेंस बन जाता है बिज़नेस के लिए, क्योंकि पैसा बिज़नेस से जा रहा है। ड्राइंग्स में क्या होता है, पैसा बिज़नेस से जा रहा है। तो कैपिटल अकाउंट ड्राइंग्स टू कैपिटल, जब ड्राइंग्स होती हैं तो उसका डबल साइडेड इम्पैक्ट होता है। कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज़ आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी जो बिज़नेस है उससे पैसा जा रहा है। दैट्स वाई आपने ड्राइंग्स अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि आप ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। जो जितनी भी ड्राइंग्स थी उसकी अमाउंट को आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है कि ड्राइंग्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है कैपिटल अकाउंट पे। तो हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ड्राइंग्स की वजह से क्या हो रहा है, आपके कैपिटल में डिक्रीज़ आएगा। तो जब डिक्रीज़ आएगा आपके कैपिटल अकाउंट में, तो डिक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट इज़ शोन बाय डेबिट। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी ड्राइंग्स हैं उसकी वजह से कैश जा रहा है, दैट्स वाई हमने ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट the closing entries. These are 5 major classifications जो कि आपने माइंड में रखनी होती हैं whenever you are going to pass closing entries or whenever you are going to close the books of accounts. So that was all about the major closing entries. Hopefully it would be a bit clear to all of you. Thank you.